میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے، وہ ان جالیوں کی شان کیا، ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ایک اہم مسئلے کو لے کر ہم سامنے آئے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہمیں غیر مقلد حضرات جو ہے مقلد حضرات کو ایک تان دیا کرتے ہیں کہ وہ جو ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور ان کے جو ماننے والے مقلد حضرات ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور باقی کی باقی پوری کی پوری امت جو ہے ان کے خلاف میں کھڑی ہے، اور اس تعلق سے بہت سارے وسوسے جو چھوڑے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک وسوسہ یہ ہے کہ علماء عرب جو ہے احناف کے خلاف میں عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے لے کر جو غیر مقلد حضرات ہم کو اکثر تانے دیا کرتے ہیں کہ بھائی علماء سعودی عرب جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھتے اور تم احناف جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے، اور اوپر سے ایک عام ذہن ایک سیدھے سادے انسان جو زیادہ مسئلے میں نہیں اترتے ہیں، وہ اپنی عبادت پہ دھیان دیتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کو راضی کر لیں، ایسے انسان کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ بھائی کہ تم ایسے نماز پڑھے دیکھو وہ کیسی نماز پڑھ رہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ تو وہ علماء ہے جو صحابہ کرام نے جہاں سے دین کو پھیلایا، جہاں سے دین پھیلا، جہاں پر قرآن نازل ہوا، اس جگہ کے علماء کرام ایسا عمل کرے اور تم ان کے خلاف عمل کرو۔ اور اس کے بعد میں ایک اور بات کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ انہوں نے دین کو زیادہ سمجھا کہ تم نے زیادہ سمجھا۔ اب ایسی موٹی موٹی باتیں جب ایک عام فہم ایک سیدھے سادے انسان کے دماغ میں اترتی ہے تو اس کے دلوں میں وسوسے اترتے ہیں کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں صحیح عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں ایک بدگمانی ڈالی جاتی ہے امت سے، اسلاف سے، علماء سے، اس سب کے تعلق سے بدگمانی ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے کہ تو اس کو جو ہے غلط عمل پہ، ایک غلط چیز پہ عمل کرا رہے، بلکہ یہ صحیح نہیں، صحیح وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ آج جو ہم بات کرنے والے قیام کی حالت میں نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائے، اس تعلق سے کچھ چیزیں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ احناف صرف اکیلے اس پہ عمل کرتے ہیں یا احناف کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک چور کی داڑھی میں کیا تین کا، چور کی داڑھی میں کیا بھائی تین کا، کہیں کچھ چھپا تو نہیں رہی امت سے کہ بھائی احناف اکیلے ہیں۔ چلے آج ذرا یہ بھی دیکھ لیتے کہ احناف اکیلے ہیں کیا اس مسئلے میں، کہ احناف کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، یا کوئی ایک پورا کا پورا مذہب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس مذہب کی میں بات کر رہا ہوں جن کے علماء کا یہ بہت نام لیتے ہیں۔ آج چلیے انہی علماء کی تحقیق بھی سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ان علماء کو یہ پکڑتے ہیں کہ ان کو بھی آج یہ چھوڑ دیں گے۔ بھائی میں جس مذہب کی بات کر رہا ہوں جو احناف کے ساتھ اس موقف پہ کہ بھائی کی ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جانا چاہیے، اس مذہب کا نام ہے مذہب حنابلہ۔ مذہب حنابلہ جو امام احمد بن حنبل کے طریقے پہ چلنے والے ہیں لوگ، ان کا کیا موقف ہے اس تعلق سے؟
भाई पूरी की पूरी जमात जो है ना हनाबिला का मशहूर व मारूफ मजहब यही है कि नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए, और इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से मैं दलीलें दूंगा, मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह कि मजहब हनाबिला के नजदीक भी मशहूर व मारूफ कौल यह है कि नाफ के नीचे हाथ बांधे जाए। चले आइए आज जो है ना इस ताल्लुक से हम मजहब हनाबिला के अंदर क्या अकवाल मौजूद है। मजहब हनाबिला के अंदर 3 अकवाल मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला यह है कि नाफ के ऊपर हाथ को बांधा जाए। भाई नाफ के ऊपर हाथ को बांधने से मुराद ये नहीं कि सीना, जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई नाफ के ऊपर क्या आता है, बोले सीना, उनको पेट दिखता नहीं, नाफ के ऊपर पेट नहीं दिखता, उनको सीधा सीना दिखता है। दूसरा उनका जो मौकिफ है इस मसले के ताल्लुक से वो ये है नाफ के नीचे हाथों को बांधा जाए, दूसरा कॉल ये मिलता है। तीसरा कॉल जो मिल रहा है इमाम अहमद बिन हम्बल का इस ताल्लुक से मजहब हनाबिला के अंदर, कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने है ना इजाजत दी है कि दोनों में से किसी को भी इख्तियार किया जाए। हम जो है ना ये तीनों कॉल को ला रहे हैं, क्यों भाई हमारे बड़ों ने हमको ये सिखाया कि एतदाल रखा जाए, हम एतदाल और इंसाफ पसंद के लोग हैं, हम इंशाल्लाह इसमें इंसाफ करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए हमने जो है ना तीनों अकवाल जो है मजहब हनाबिला के आपके सामने लाए हैं। अब लेकिन ये 3 अकवाल मिल रहे हैं, चौथा कोई कॉल मिला क्या? चौथा कोई कॉल मिला नहीं। हमारे भाइयों का क्या मजहब है, कहां पर हाथ बांधा जाए? सीने पे। कहां बांधा जाए? सीने पे। और मजहब हनाबिला के अंदर कहीं पे सीने का कॉल नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है, नाफ के ऊपर और नाफ के नीचे, मतलब सीने पर बांधने का कॉल कहीं भी नहीं मिलता है। अब आज जरा मजहब हम्बली की मशहूर किताबों को देखते हैं और उनके मुतकद्दमीन हजरात ने क्या नकल किया इस ताल्लुक से, आज जरा वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला कॉल जो मैं लाऊंगा इंशाल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का लाऊंगा, है ना भाई, क्योंकि वो बानी है, वो क्या भाई सबसे पहले ना फॉरमोस्ट इंसान है इस ताल्लुक से। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह की किताब है मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल बरिवायत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह, उसके सफर नंबर 47 और 48 पर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया, क्या आप पसंद करते हैं नमाज में हाथों को बांधना? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा हाँ। तो उसके आगे इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि फिर मैंने उनसे पूछा नमाज में हाथ कहाँ बांधे जाए? तो इमाम अहमद ने जवाब दिया नाफ के ऊपर थोड़ा सा, और अगर नाफ के नीचे हो तो कोई हर्ज नहीं। कहाँ बांधे जाए भाई? नाफ के ऊपर थोड़ा सा, थोड़ा सा बोले तो क्या भाई? सीना, नाफ के ऊपर थोड़ा, सीना थोड़ा है भाई, है ना, एक बिल्लस का लगभग फर्क होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या भाई, और नाफ के नीचे हो तो कोई हर्ज नहीं। अभी आगे की बड़ी बहुत ही जरूरी बात है जो इमाम अबू दाऊद ने नकल की, अल्लाह जो है इमाम अबू दाऊद की इस कॉल को सुनने के बाद उनको सही रास्ते पे आने की तौफीक। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह कहते हैं, और मैंने यह भी सुना उनसे, और मैंने उनसे यह भी सुना कि मकरू है, क्या है भाई? मकरू है अपने हाथों को सीने पर बांधना। क्या है? मकरू है अपने हाथों को सीने पर बांधना। कहां बांधना भाई? सीने पर, ठीक है। ये तो हो गया पहला हवाला। इंशाल्लाह अब ये जो दूसरा हवाला मैं दे रहा हूं, इमाम इसहाक बिन मंसूर अल कौसद, ये जो है शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल के और इमाम इसहाक बिन राहवे के। तो इन्होंने किताब लिखी मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल व इसहाक बिन राहवे। इसमें भी इन्होंने वही सवाल किया जो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने इमाम अहमद बिन हम्बल से किया कि भाई कि नमाज की हालत में हाथ कहां बांधे? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने वही जवाब दिया कि अपने हाथों को जो है थोड़ा सा नाफ के ऊपर और नाफ के नीचे अगर कोई हाथ बांधे तो कोई हर्ज नहीं, मतलब थोड़ा सा अगर नाफ के ऊपर हाथ बांधता है तो चलेगा, और नाफ के नीचे भी अगर कोई हाथ बांधता है तो कोई हर्ज नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा। फिर उसके बाद इमाम इसहाक बिन मंसूर कहते कि मैंने अपने उस्ताद इसहाक बिन राहवे से, किससे? इसहाक बिन राहवे, बहुत बड़े मुहद्दिस बोले तो गए, हदीस का ये एकदम एक्सपर्ट, और एक बहुत बड़े इमाम भी थे। तो ये कहते हैं कि जब इसहाक बिन मंसूर कहते हैं जब मैंने अपने उस्ताद इमाम इसहाक से पूछा इस ताल्लुक से, तो इमाम इसहाक ने कहा कि हदीस में नाफ के नीचे का लफ्ज ज्यादा कवी है। क्या कवी है भाई? सीना। क्या कवी है? हदीस में नाफ के नीचे का लफ्ज ज्यादा कवी है, और यही तवाज़ो के करीब है, और यही क्या है? तवाज़ो के करीब है, ठीक है। ये कॉल कहां नकल है? मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल व इसहाक बिन राहवे बरिवायत इसहाक बिन मंसूर कौसद, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 139, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 139। इस तरीके से अबू कासिम उमर बिन हुसैन अल खरकी अल हम्बली, एक और मुतकद्दिम हजरात में से, ये गालिबन इमाम इब्न खल्लाल जो इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द थे, उनके शागिर्द है गालिबन। तो अबुल कासिम उमर बिन हुसैन अल खरकी अल हम्बली, जिनकी वफात सन 334 हिजरी में, कब की है भाई? 334 हिजरी में। आज 14वीं सदी का इंसान नहीं है वो, कब कहाँ है? 334 हिजरी के। फरमाते हैं अपनी किताब मुख्तसर अल खरकी सफा नंबर 20 पर, मुख्तसर अल खरकी सफा नंबर 20 पर फरमाते हैं कि अपने हाथों को कान के लौ तक या मुंडे तक उठाए, फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुष्प पर नाफ के नीचे रखे। कहां पर रखे भाई? नाफ के नीचे रखे। इसी तरीके से इमाम इब्न कुदामा अल मकदसी अल हम्बली, कौन है भाई इमाम इब्न कुदामा? इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाह वो हस्ती है, वो मुहद्दिस है
जिन्होंने फिका हनाबिला को जो शक्ल दी है, किताबी शक्ल जो दी है ना, वो इमाम इब्न कुदामा अल-हम्बली रहमतुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल के मजहब के तमाम मसाइल थे उनको जो इन्होंने एक मुरत्तब किया किताब की शक्ल। इनकी बहुत सी किताबें, अल-मुगनी है, अल-मुकनी है, फिर इसी तरह से उम्दतुल फिक्र है, ऐसी बहुत सी इनकी किताबें, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इसके ऊपर, मजहब हम्बली के ऊपर। तो इमाम इब्न कुदामा अल-मक़दसी अल-हम्बली रहमतुल्लाह कहते हैं कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की पूंछ पर नाफ के नीचे रखे। क्या कह रहे भाई कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की पूंछ पर नाफ के नीचे रखे। उम्दतुल फिक्र सफा नंबर 24 पर ये बात उन्होंने कही है। इसी तरीके से एक और जगह इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाह कहते हैं कि अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के हथेली पर नाफ के नीचे रखे। अल-मुकनी अलग है और अल-मुगनी अलग है, ये दो अलग किताब है, कंफ्यूजन ना हो। ये इबारत अल-मुकनी में कहा है उन्होंने, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 183 पर। इसी तरीके से अपनी एक मशहूर किताब जो मजहब हनाबिला की मशहूर किताब है और मुस्तनद किताब है, उस किताब का नाम है अल-मुगनी, जिसके मौलिफ वापस से इमाम इब्न कुदामा अल-हम्बली रहमतुल्लाह ही है। उन्होंने मसला नंबर 145 के तहत बाब बांधा, नमाज में हाथ को नाफ के नीचे बांधे। नमाज में अपने हाथों को, बाब क्या दिया भाई, नमाज में अपने हाथ को नाफ के नीचे बांधे। अब इसके तहत उन्होंने जो है बात लाई, इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है और तमाम चीजें वो नकल करते कि इमाम अहमद बिन हम्बल से इस ताल्लुक में मुख्तलिफ कौल आए हैं और इसमें उलमा में इख्तलाफ है। तो पहला कौल तो उन्होंने लाया कि भाई कि नाफ के नीचे हाथ बांधेगा, और उन्होंने कहा कि भाई यही मरवी है हजरत अली से, हजरत अबू हुरैरा से, इब्राहिम अन-नखी से, अबू मिजलस से, सुफियान अस-सौरी से, इसहाक बिन राहवे से। किससे मरवी है भाई? सुफियान अस-सौरी, याद रखें, सुफियान अस-सौरी। सुफियान अस-सौरी वही है जो वाइल बिन हुजर वाली सीने वाली हदीस में भी रावी आते हैं। रावी का खुद का अमल जो है हदीस के खिलाफ है, इससे सुफियान सौरी को ध्यान में रखे। और उसके बाद इसहाक बिन राहवे है, इन सबका उन्होंने नाम नकल किया। और उसके बाद कहा कि हजरत अली ने रिवायत किया है कि सुन्नत है अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ नाफ के नीचे रखे, और हवाला दे सुनन अबू दाऊद और मुस्नद अहमद का। और इसके बाद उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल से एक और कौल है नाफ के ऊपर के ताल्लुक से, और हदीस नकल की वाइल बिन हुजर की। देखो भाई, हम यहाँ पर इस बात को भी नकल करते हैं कि उन्होंने क्या नकल किया, कि जैसे मैंने पहले कहा हमारे बड़ों ने हमको इंसाफ सिखाया है, हम पूरी इबारत नकल करते हैं, तो आधी अधूरी इबारत नहीं निकल। नाफ के ऊपर के ताल्लुक से जो उनका कौल है, उसके तहत जो उन्होंने हदीस लाई, कौन सी लाई? वाइल बिन हुजर की, सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस है। लेकिन इस्तदलाल क्या कर रहे हो? इस्तदलाल क्या कर रहे हैं? नाफ के ऊपर का, सीने का इस्तदलाल नहीं किया, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक खुद मकरू है सीने पर हाथ बांधना। उनके नजदीक क्या है? मकरू है सीने पर हाथ बांधना। तो उन्होंने ये हदीस वहां पर लाई और ये इस्तदलाल किया। फिर उसके बाद तीसरा कॉल उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उनके नजदीक 3 कॉल है हनाबिला के, तो तीसरा कॉल उन्होंने नकल किया कि इख्तियार है दोनों में किसी पे भी एक पे अमल कर लिया जाए। अल-मुगनी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 141 मसला नंबर 145 के तहत। और मसले का बाब क्या बांधा उन्होंने कि नमाज की हालत में नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए। ठीक है। इसी तरीके से एक और जगह पे इमाम इब्न कुदामा अल-मक़दसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अपनी किताब अल-काफी अल-फिक जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 284 के ऊपर कि नमाज में अपने हाथों को बांधा जाए नाफ के नीचे, जैसे रिवायत किया हजरत अली से मरवी, जैसे कि हजरत अली से मरवी है, और उन्होंने फरमाया कि अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधे, और ये सुन्नत में से है। यहाँ